everyone. Hi, this is Coach Darshan Vyas, and our today's guest is somebody who's into health and fitness. And let him come on board because we have been eagerly waiting for him. Okay, hello. Hello, coach. How are you? I'm good. I'm good. How are you, buddy? I'm also doing fine, thank you. Wonderful. Great. So I was just talking about you to the audience, and we already have a lot of viewers here. So I'll just formally introduce you. Our today's guest is somebody who's into health and fitness, who's absolutely passionate about fitness. He helps you to reset your gut. He helps you to set the tone of your life. वो आपको माइंड बॉडी फिट करने में बहुत मदद रूप होने वाले हैं. एंड वन ऑफ द यंगेस्ट गेस्ट ऑन माय शो, एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम कोच बिपिन काकाया. आपका स्वागत है. Thank you for such a wonderful invite, Coach Darshan Vyas. It is a pleasure talking to you and everybody who is tuning in right now. Great. Okay. So I think, before we deep dive into your core subject, आपकी फिटनेस एक्सपर्टीज जो है, but before that we would love to know कि आपको फिटनेस की आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? What made you to get into the health coaching? और कहाँ से वो पड़ाव शुरू हुआ? कैसे हुआ? बताइए. Got it. So not many people know this already. Mm-hmm. But I actually went and studied aerospace engineering. मेरी graduation उसमें हुई है. Ah, So I've done a master's degree with honors in aerospace engineering from the University of Manchester, which is in UK. okay. And then I was even working with Airbus for Oh, an entire year in UK itself. But then during that process, before this journey even began, I was struggling with, binge eating disorder. And as a result, I had put on a lot of weight and massive love handles. And I used to look at myself in the mirror and I used to not appreciate what I'm seeing. And I used to always look in the mirror at the end of the day and pray to God that it would be a miracle if I ever get fit. Or, those huge love handles अगर कभी चले गए तो बहुत ही अच्छी बात होगी. ग्रेट. तो हम अभी एक एरोस्पेस इंजीनियर से बात कर रहे हैं जो फिटनेस के एकदम पैशनेट है और जिन्होंने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया. बिकॉज तो आपने हेडलाइन बना दिया आज के दिन में. बिकॉज अभी बिहार इलेक्शंस की बात हो रही है, बट आई थिंक अभी तो ये बड़ी हेडलाइन होगी यहाँ पे, एरोस्पेस इंजीनियर टर्न्ड इनटू हेल्थ कोच. So I think this fits to our probably the title for our live, but I think I would love to more about you. कि क्या आगे आपने कैसे किया? Got it. So then what happened is that I used to always desire, मुझे काफी ऐसा जब मैं अपने आप को देखता था मिरर में मुझे नहीं पसंद आ रहा था, तो मैंने काफी कुछ चीजें ट्राई की. मैं जब मैनचेस्टर में था तो मैंने जिम्स ज्वाइन किए एंड मल्टीपल टाइम्स ऐसा था कि एक बार तो पूरे साल की जिम की मेंबरशिप पे कर दी एंड सिर्फ 3 बार गया. ओह. तो वेस्टेड लॉट ऑफ जिम मेंबरशिप्स. फिर एक साल ऐसा था कि जिम मेंबरशिप खरीद ली एंड जाके सिर्फ कार्डियो करता था. ओके. 20 minutes of treadmill, 20 minutes of cross trainer, 20 minutes of cycling. And फिर भी वो love handles कभी उनका जाने का नामो निशान कहीं था नहीं. Until one fine day that a coach of mine introduced me to the concept of diet and nutrition. ओके. एंड तब जाके मैंने अपने न्यूट्रिशन पे देना ध्यान दिया. डाइट नहीं कर रहा था, मैं न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहा था, विच मीन्स के आई वाज ईटिंग फूड विच इज रिक्वायर्ड बाय माय बॉडी टू फ्यूल माय गोल्स एंड जस्ट इनफ. तो जैसे ही मैंने वो शुरू किया तो विद इन 2 months लव हैंडल्स वैनिश्ड. ओह वाओ. सो द थिंग विच आई हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स it disappeared in a few months. Okay. तब जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली फिट होना काफी इजी है. लोग बस खाली फुकट 5-10 डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट करते हैं बिना अपने डाइट पे ध्यान दिए, बिना अपने रिकवरी पे ध्यान दिए. तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि उस वक्त हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज, उनको हेल्थ कोच की वैल्यू पता चली, जो आज हमारे सारे व्यूअर्स को पता चलेगी. करेक्ट. बिकॉज मेरे पास वो गाइडेंस था. इतना कुछ ट्राई किया ऑलरेडी लाइफ में एंड सीइंग नो सक्सेस, एंड फाइनली व्हेन यू गेट गाइडेंस फ्रॉम समबडी यू आर सीइंग रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड. एब्सोल्युटली. आई थिंक हमारे व्यूअर्स आज लकी होने वाले, बिकॉज जिस तरह से हमने मिथेन को यहाँ पे लेके आए हैं और बड़ा हम्बल पर्सनालिटी, बिकॉज जिस तरह से आपका काम है, आपकी फॉलोइंग है, आपका प्रोग्राम में देख रहा था, आपके वीडियोस में देख रहा था, यू ब्रिंग सो मच फन, एनर्जी एंड लर्निंग फ्रॉम योर वीडियोस. और जिस तरह से आप सुपर हिट में देख रहा था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आई एम एक्साइटेड, एक्चुअली थोड़ा जेलस भी, बिकॉज आपको बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज आपको फॉलो करे. तो आई एम लविंग इट मैन, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बोर्ड. आप आज आए हैं, आई थिंक बहुत यंग है आप. आई कैन से द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज सेफ, बिकॉज आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, एटलीस्ट इंडिया के लिए तो है ही. तो मैं मानता हूं कि इससे बेहतर
आज इंस्टा लाइव नहीं हो सकता था, बिकॉज आज मितेन हमारे साथ है। Nice. Thank you once again, Coach Darshan. काफी, it means a lot, coming from you. ऑफकोर्स देखिए मितेन, ऐसा है कि आप आपकी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे हम लोग शेयर करने वाले हैं। और जिस तरह से आपने अभी तक काम किया है, द बॉडी ऑफ वर्क विच यू ऑलरेडी डन विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। तो इसके साथ ही बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, एन एरोस्पेस इंजीनियर टर्निंग इनटू हेल्थ कोचिंग, और उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? बिकॉज लोग आज क्या सोचते हैं कि यार कुछ नहीं किया तो वो फिटनेस में चला गया, या मैं आई गो टू जिम, तो मैं देखता हूँ कि हमारे ट्रेनर्स होते हैं, तो इट इज अज्यूम्ड, हम लोग बहुत ऐसी धारणा करके चलते कि यार वो कुछ नहीं चला तो ट्रेनर बन गया। तो आई थिंक यू हैव किल्ड दैट नोशन टुडे। समबडी एलीट, समबडी हु इज रियली स्टडिंग अब्रॉड, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसी, और आपने मास्टर्स की थी, आपने आईवी लीग जैसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बावजूद आपने ये चूज किया। तो आई थिंक यू प्रूव दैट मेटल के हेल्थ कोचिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। और मैं आज ऐलान करना चाहूंगा, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड डायबिटीज डे, कि हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस इज अर्लियर आई न्यू कि इट वाज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, नाउ आई कैन सी इट्स अ $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो आपने आई थिंक सही चूज किया है, सही चुनाव किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, it's not that I chose this industry for the the kind of industry it has become, but ये मेरे लाइफ में एज अ पैशन आया है, क्योंकि एक होता है अपने आप पे काम करना, बट दूसरी चीज होती है कि दूसरों का मदद करना। करेक्ट। वहां पे जब वो चीज मेरे लाइफ में आई, तब मुझे पता चला कि मैं जो एयरबस में काम कर रहा हूँ वो सब तो कुछ इतना मेरे लाइफ में वैल्यू नहीं ला रहा, एंड सेकेंडली उतना मजा भी नहीं आ रहा, एज अपोज टू अगर किसी की मदद कर रहे हो, उसकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हो, और वो खुद अपने आप से प्यार करने लगे। And as a result, over the last 8-9 years, we've had more than 10,000 people. हमारे clients ना सिर्फ इंडिया से है, but more than 45 countries across the world. So we've got global presence as well. And one thing is common amongst everybody, कि वो आके बोलते हैं हमें कि मितेन, हमें इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों से, मैं अपने आप को जब खुद को देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, प्लस मेरी एनर्जी लेवल्स इतनी बढ़िया हो चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस इज नाउ स्काई हाई, एंड एज अ रिजल्ट मेरे काम पे भी इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है कि जो चीज मैं पहले सोच भी नहीं सकता था कि मैं कर पाऊंगा एक दिन के अंदर, मैं 3 दिन का काम एक दिन में कर रहा हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू। वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, इट्स क्वाइट विजिबल, फॉर श्योर। आपको दुआओं ज्यादा मिलती हो, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी नॉट ओनली हु इज लाइक फिट एंड फाइन और मे बी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, पर यू ऑल्सो हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू ओवरकम देयर फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल चैलेंजेस। कहीं ना कहीं वो एक मेंटल ट्रबल भी होती है, बहुत सारे आयाम होते हैं इसके बैकग्राउंड में जो हम लोग काफी बार शेयर नहीं करते हैं। आई थिंक ओवरऑल आपको बहुत दुआएं मिलती होगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत मदद की जरूरत है। सो आई थिंक it is really happy we are talking on this day. I think thank you for joining us. I don't know. I think it's God's grace that we've had the opportunity to impact so many lives. Oh, wonderful, great. किस क्षण आपने तय किया कि नहीं यार मैं ये करूंगा? बिकॉज आई थिंक आपके पास डिग्री थी, क्वालिफिकेशन थी, आपके पास एक्सेस था, आप यूके में थे, आप चाहते तो वहां पे रुक के अपनी करियर बना लेते और एक सफल एनआरए का टाइटल आपके लिए रेडी था। व्हाट मेड यू चूज टू कम बैक टू मुंबई, टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया? आप क्यों वापस आए? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं एक बार आया था एक वेकेशन के लिए, मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो कर चुका था तब भी, एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब पहली बार आया था मुंबई, मेरे को अभी भी याद है कि मैं एक मॉल में घूम रहा था, एंड आई वाज सीइंग एवरी सिंगल पर्सन, हर कोई बंदा जो मेरे आगे से, मेरे नजरों के सामने से गुजर रहा था, कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा था। पेट बाहर निकला हुआ था, डबल चिन है, आर्म में बहुत बड़ा फैट है, सही से चल नहीं पा रहे। वी सीन पीपल वॉक, स्पेशली ओल्ड पीपल, दे वॉक लेफ्ट राइट लेफ्ट, एंड तब मेरे दिमाग में ये स्पार्क हुआ कि देखो, एक होती है खुद की रिक्वायरमेंट कि हाँ करना है, बट लेकिन मैं कितने सालों से ये चाह रहा था कि मैं फिट हो जाऊं, बट मेरे पास वो पाथ नहीं। Once I got the path, I realized it is actually very simple and easy. So then I made it my life's mission to show that path to as many people as possible, ताकि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली इच्छा है, अंदर से वो आता है कि नहीं मुझे अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं, उनके लिए उनकी जर्नी को कैसे आसान किया जाए, that is what inspired MSF and helped me get into this line of business. ग्रेट। आपने कुछ मेंशन किया एमएसएफ, ये एमएसएफ क्या है? बिकॉज मैं जानता हूं, पर हम चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स के लिए, हमारे जो आज इंस्टाग्राम ऑडियंस है, एंड स्पेशली माइंड यू कि इंस्टाग्राम इट्स 18 to 35 प्योर यंग क्राउड, तो ये एमएसएफ क्या है बताइए? तो MSF stands for Miten Says Fitness. It is my brand identity. It's an IP that we've worked for the last 8-9 years.
तो हमारा जो प्रोग्राम भी है तो उसे भी बोलते हैं MSF लाइफस्टाइल रीसेट प्रोग्राम. सो दैट इज हाउ द ब्रांडिंग गोज बाय द नेम ऑफ MSF. एंड इसके साथ 3 important वर्ड्स जुड़े हुए हैं, which is believe, persevere and perspire. पसीना तो बहाना पड़ेगा, सही है. करेक्ट, पसीना बहाना तो सब जानते हैं, बट एक होता है सबसे पहले कि आपको उस चीज में बिलीफ रखना हो, अपने आप में बिलीफ रखना हो कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ. क्योंकि क्या होता है यूजुअली, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू लुकिंग एट आवरसेल्फ इन अ सर्टेन वे, कि वो जो ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन अपना है वो दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता. एंड न सिर्फ दिखाई नहीं देता, खुद पे जो भरोसा है वो ही चले जाता है. ओह, सही बात कही आपने. कि क्या मैं ये कभी कर पाऊंगा. अप अंटिल 30 फिर भी लोग सोचते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा. एक बार 30 आ जाता है तो इट बिकम्स अ डिस्टेंट ड्रीम. ये कॉलेज में सोचा था कभी तो लाइफ में 6 पैक एब्स आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे. अभी लाइफ की जिम्मेदारियां इतनी सारी बढ़ चुकी है और मैं इस तरीके से रह रहा हूँ, मेरी बॉडी इस तरीके से है, क्या मैं ये कभी कर पाऊंगा. सो दैट हैविंग दैट बिलीफ. करेक्ट करेक्ट. सो आपको मैं एक क्विक सवाल पूछूंगा कि आपके बच्चे से मुझे 2-3 सवाल आए हैं बिकॉज जो हमारे इसमें नहीं है, बट ये MSF के कुछ 2-3 प्रोग्राम्स के बारे में बता दीजिए, बिकॉज आई थिंक प्रॉब्ली ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द कॉल वी माइट मिस ऑन दैट. तो मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता दीजिए आपका संपर्क किस तरह से कर सकते हैं और आप किस प्रकार के प्रोग्राम से उनको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा चीजें आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो क्या कर सकते हैं. गॉट इट. सो बेसिकली अगर आपको आपके लाइफ में कोई भी इश्यूज हो हेल्थ के रिगार्डिंग या अपने फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल बनाते हैं. दैट इंक्लूड न्यूट्रिशन. इट्स नॉट अबाउट कैलोरी डेफिसिट जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मचा पड़ा है. कैलोरी डेफिसिट इज ग्रेट फॉर वेट लॉस. इट इज नो डाउट अबाउट दैट. आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, बट वेट लॉस इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. That's a different side of story. Body recomposition is a solution to all your problems. उसके लिए कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ नरिशिंग योर बॉडी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको दिन में क्या अपने बॉडी में खाना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस खाने को अब्सॉर्ब कैसे किया जाए ताकि उसके जो बेनिफिट्स है वो आपकी बॉडी यूज कर पाए. उसका सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी, नहीं तो मूवमेंट. आजकल फैड चला है पिलाटेस का. आई विल गेट अ लॉट ऑफ गालीज फॉर दिस, for calling it a fad, but it's a new thing. People want to try it because already काफी सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, तो लगता है कि ये जो नई चीज है Why not? मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा. But the problem lies that people tried 5 different types of workouts without ever watching their nutrition. So first pillar nutrition, second pillar is movement or physical activity. क्या करना चाहिए आपको लाइफ में. Third, one of the most underrated aspect of health and fitness is sleep and recovery. Okay, perfect. Correct. Go on, sir. Yes. Okay, great. Fine. Sleep is something which people usually ignoring as well. They are undermanaged. And forget ignoring, a lot of people actually struggle with it as well. True. कि या तो बेड पे जाते ही सो नहीं पाते, या तो अगर सो गए तो कुछ भी हल्का सा मूवमेंट हुआ, लाइट स्लीपर होते हैं तो अचानक से आंख खुल जाती है. The third issue is that you struggle to wake up in the morning. अलार्म बज रहा है, मल्टीपल स्नूज करे जा रहे हैं, सन की रोशनी आंखों पे आ रही है, लेकिन नहीं निकल नहीं पा रहे बेड के बाहर. अगर निकल भी गए बिकॉज यार कमिटमेंट दिया है कहीं पे ऑफिस जाना है तो निकल रहे, बट वही थके हारे जाते हैं. तो स्लीप तो कंप्लीट हो रही है लेकिन रिकवरी पूरी नहीं हो रही है. तो दैट वे प्रायोरिटाइजिंग स्लीप. एंड फोर्थ पिलर कम्स टू योर लाइफस्टाइल. ओके, करेक्ट. आपके प्रोग्राम के बारे में बताइए, बिकॉज आपने ये 4 पिलर्स बताए. तो ये जो 4 पिलर्स है, राइट, हमारे प्रोग्राम में ये 4 पिलर्स को आपके लाइफ के अंदर कैसे इंटीग्रेट किया जाए वो रास्ता हम आपको दिखाते हैं. ओके, क्योंकि करने के लिए अगर आप देखोगे, some people will be watching this video on YouTube, some people will be watching this video on Instagram, and on both those platforms there is plethora of information. There is 10,000 things that you can possibly do. True. बट वो 10,000 में से कौन सी 5 चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर कॉन्टेक्चुअली एप्लीकेबल है, वो रास्ते आपको हमारा प्रोग्राम दिखाता है. परफेक्ट. सो फॉर माय व्यूअर्स आई वुड से कि मितेन आपको कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स देने वाले हैं. ही इज गोना हिट वेयर यू नीड इट एंड इज गोना एक्चुअली हेल्प यू, गाइड यू, ही विल एक्चुअली वॉक यू थ्रू द एंटायर जर्नी बाय होल्डिंग योर हैंड्स एंड मेक श्योर you hit your targets the way you want. Correct. कोई जल्दबाजी नहीं होने वाली है, सारी चीजें प्लान होने वाली है, आपका हैंड होल्डिंग होने वाला है. And if you need his help, please note his handle, DM him directly, and he's going to be available with us
for next 1 hour. So here we go, sir. Yes. Thank you for that summarizing Yes. it so well. Oh, absolutely, absolutely. आपने एक चीज बताई, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, मैं आपको कंट्रोवर्सी से शुरू करता हूँ. You mentioned about six pack abs. तो क्या six pack abs is a demonstration, the symbol of fitness? Is it बहुत जरूरी है क्या? Not really. Okay. Not तो ये really. It फैक्ट क्या doesn't. कि मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए, बिकॉज आई हैड कमिटेड वंस टू माय डॉटर, हालांकि वो चीज बाकी है एंड आई एम ऑन वे टू इट, बट आई थिंक मैं अभी चोरी छुपे आपकी हेल्प लेने वाला हूँ. बट जोक्स अपार्ट, क्या सिक्स पैक एब्स जरूरी है एंड डज इट जस्टिफाई कि आप फिट है? So, six pack abs एक physical tangible assessment है आपको अपने progress को gauge करने के लिए. ओके. Right? Because it's easy to visualize yourself and look at yourself getting those six pack abs and actually working your way over there. कि पेट जैसे ही अंदर जा रहा है धीरे धीरे जब तक सिक्स पैक एब्स आते नहीं है तब तक मेरा मोटिवेशन बना पड़ा है. So it is a great target to have. But that does not define longevity or health. Okay. Because to get to six pack abs, you can do a lot of overtraining, a lot of severe calorie deficit. And as a result, your hormones get fluctuate a lot. Your testosterone starts tanking. Your fertility issues start coming up for women. Mood swings start happening. Periods start getting irregular. Okay. Because of the journey that they take towards getting that six pack abs. Okay. So, and this six pack abs is applicable for both men and women? Yes, absolutely. Great. Perfect. Good you clarify. Because बहुत सारे मिथ चलते हैं और आज आपकी हेल्प हम लोग लेने वाले हैं कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी सारे मिथ है उसमें से आप मिथ ब्रेक करेंगे, वो बहुत बड़ी सेवा होने वाली है आपकी. सो आई हैव अ क्वेश्चन विच इज कमिंग अप फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल के हर एक फिटनेस कोच की अपनी पर्सनल स्टोरी होती है. आपने आपकी करियर स्टोरी बता दी, कोई पर्सनल स्टोरी है कि इसके पीछे की? Personal in the sense. हेल्थ इश्यू, आपने कोई डिसीजन लिया था या इट वाज जस्ट अ फ्लो? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया था, इट वाज मोर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल व्हाट आई एम ईटिंग, एज सिंपल एज दैट. अगर मैं समराइज करूं, ओके, मेरे सामने अगर खाना आता था एंड इफ आई लाइक इट आई विल कंटिन्यू ईटिंग इट अंटिल इट गेट्स ओवर. एंड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू कंटिन्यू फीडिंग मी बिकॉज by God's grace we had the means. So ऐसा कभी खाना आने का स्टॉप नहीं होता था, you get what I'm saying. As a result, I started having that relationship with food in such a way that it just made me balloon up for no reason at all. Correct. So this takes us to called obesity because India is again the capital of obesity. तो देखा जाता है कि 15 साल का बच्चा भी ओबेस है, 25 साल का युवा भी ओबेस है और 35 साल का जो लड़का है वो भी ओबेस है. Obesity is like हमारा नेक्स्ट धर्म हो चुका है because every community, every religion you find people who are obese. So I think obesity is the biggest religion in India, if we can say that. How do we overcome this? क्या बेसिक सिंपल स्टेप्स होनी चाहिए जिससे हम लोग ओबेस के नीचे आ जाएंगे? एटलीस्ट मान लीजिए हम लोग बहुत ज्यादा फिट नहीं है, सिक्स पैक एब नहीं है, पर ओबेस के नीचे आ जाएंगे. फॉर दैट अपने को वेट लॉस छोड़ के बॉडी रिकम्पोजिशन पे टारगेट करना चाहिए. बॉडी रिकम्पोजिशन आप समझते हो? आप समझिए प्लीज. मैं समझाता हूँ. सो बॉडी रिकम्पोजिशन मीन्स करंटली क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होते जा रही है, इज गेटिंग स्टोर्ड एज फैट. तो वो फैट अक्यूमुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में और उसके वजह से हम ओबीज होते जा रहे हैं. उसके साथ ही साथ हम जो मसल है, मसल पे इतना ध्यान नहीं दे रहे. मसल के कई बेनिफिट्स अपने बॉडी के अंदर. इम्यूनिटी को बेटर करता है, इट इज नेचुरल स्पैंडेक्स यू कुड से, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके पोस्चर को अच्छे से रखता है, डे टू डे एक्टिविटीज करने में आपकी मदद करता है. सिंपल सी एक्टिविटी इवन लाइक ओपनिंग अ डोर फॉर एग्जांपल feels I can open it even with one finger because I have that strength. But you go talk to any old person जो एकदम पतले से हो जाते हैं क्योंकि उनका मसल लॉस काफी हो चुका रहता है तब तक. Even that person will struggle to open the door also or even off the chair. So because हम हमारे मसल को इतना स्ट्रेन नहीं देते with the kind of physical activity that it needs to, उसके वजह से अपनी बॉडी क्या समझती है कि मसल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मसल को थोड़ा धीरे धीरे डिटेरियोरेट करने लगती है. Okay. And you are doing nothing to preserve it, you are doing nothing to build it. And with the food habits that you are having and the chronic stress, undersleeping, overeating that we are doing, we look at food as हम जीते हैं खाने के लिए. So this is one of the major reasons why we are facing this problem of obesity. अब उसको overcome करने के लिए it gets really complex. It's not like कि एक रहा solution because every person's now mindset comes into the picture. Their individual gut health also comes into the picture. Because if you have been stuffing yourself all this while, there's a lot of imbalance which has happened inside your gut, and that imbalance is again controlling your mind. It is controlling your body's physiology in such a way that आपको पता ही नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है.
So it's easy for people to say that, okay, in order to overcome obesity, you need to eat less, move more. But it goes far beyond it. It's a complex procedure where your body's physiology, psychology, social, emotion, and physical abilities or physical movements comes into the picture. तो इसे इतने अगर हमें इसको मान लीजिए चेंज करना है, somebody let's say who's 35 wants to change this, somebody who's let's say 40 wants to change this. अब 4 स्टेप कुछ बताइए, 5 स्टेप बताइए कि ये क्या करना चाहिए, 1 2 3 and 4, मेकिंग इट इजी फॉर अ कॉमन मैन जिसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी बैंडविड्थ नहीं है, फिर भी उसको ये करना है. So first thing they need to start doing is not be lazy. ओके, क्या करना चाहिए? Again, it comes down very contextual. ना आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है that you have to sit, if you're an IT worker for example, and you have to sit at your desk for 12 hours, then small thing which you can start doing is to start taking regular breaks and get up and move around for 5 minutes and come back. राइट अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप ऑफिस में बैठे हो और आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप सीधा फोन उठाते हो, कंपाउंडर को बुलाते हो, वार्ड बॉय को बुलाते हो टू गेट एवरीथिंग, वो हैबिट्स को चेंज करो ना. गो योरसेल्फ, गो गेट इट. आपकी पानी की बोतल अगर खत्म हो गई है, गो टू द वाटर कूलर, गेट इट योरसेल्फ. स्मॉल ट्वीक्स टू योर डेली रूटीन. अगर आप डेली जा रहे हो कहीं पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस भी जा रहे हो एंड अपने बिल्डिंग से भी सपोज नीचे उतर रहे हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लिफ्ट, start taking stairs. Small physical activities that you will look at that will end up compounding. Okay. So, first is work on improving your physical activity. Correct. Second is look at nourishing your body in such a way that you're prioritizing protein in every meal. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप carbohydrates को enemy मानो या dietary fats को enemy मानो. Choose healthy fats in your diet because that is also important for your hormonal health. And have plenty of carbs. Carbs को मना मत करो. Carbs are important to give you that fuel. Imagine अगर आप सुबह घर से निकलते हो, अपनी फोन को पूरा चार्ज करके निकलते हो, राइट? ऐसा नहीं है कि आधा ही चार्ज करके निकलोगे. वो जो चार्जिंग है वही आपको, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. So having good amount of protein, fats and carbs in your diet during the day in the right quantity, good split of it. किसी भी चीज में overdo नहीं करना है, किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना है. Correct. And third most important is जब time आए, draw those boundaries. जैसे कि your boundaries, जैसे कि अगर आप social commitment में हो, अगर आपके सोने का टाइम है, that's it. No, I am going home. I am prioritizing myself. My boundaries are can also extend in such a way that कि ये मेरा वर्कआउट का टाइम है, तो मैं इस टाइम पे आपके साथ कोई सोशल कमिटमेंट नहीं बनाऊंगा. सॉरी. या तो आप मेरे जिम के बाद मुझे मिलो या तो उसके पहले मुझे मिलो. I think one of the biggest mistakes which people end up making is they fail to draw that boundaries because we want to be so accommodative for everybody else. True. That is one of the biggest thing that anybody needs to start focusing on is to draw those boundaries and start prioritizing it themselves. एक बार खुद को prioritize कर लेते हो तो एक चीज शुरू होती है, वो एक चीज से आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है, फिर मन करता है कि दूसरी भी चीज शुरू कर लूं क्योंकि इतना तो हो ही रहा है ऑलरेडी, मुझे मजा आ रहा है, मुझे रिजल्ट्स भी दिख रहा है. So I'm more motivated to get the other things started. Correct. Okay. So I think you mentioned about 3 things which we picked up. One is move because you're not moving. 2 is look at what you're intaking because आप जो क्या खा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है. और तीसरा आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए. तो चलिए मान लीजिए मैं I'm 35, मैंने ये तय कर लिया, मुझे प्रायोरिटी करनी थी, मैंने कर ली, मुझे मित्तल ने सिखाया, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट विल बी अ बेटर अप्रोच कि मैं वेजिटेरियन हूँ, आपने प्रोटीन की बात की, आपने कार्ब्स की बात की, मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है और मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मुझे अपना फैमिली भी देखना है. व्हाट इज अ सिंपल डाइट फॉर अ वेजिटेरियन, फॉर एग्जाम्पल कि वो वेजिटेरियन है और उसे अपना डाइट कंप्लीट करना है, तो व्हाट कुड बी अ होलिस्टिक डाइट फॉर एन इंडियन वेजिटेरियन पर्सन? So full disclosure, I'm pure vegetarian myself. I don't even consume eggs या कुछ भी. जो आप घर पे नॉर्मली खा रहे हो, अपना इंडियन स्टेपल फूड है, रोटी सब्जी दाल चावल, continue with it but just alter the proportions. Okay. If I have to break it down to the most simplest form, अगर आप अपनी प्लेट देखते हो, अपने लंच की प्लेट, वहाँ पे there is always going to be 2-3 chapatis, some portion of rice, some small portion of vegetable and 1 कटोरी दाल. Correct. But आप वेजिटेरियन हो तो आपको क्या करना है कि वो 1 कटोरी दाल का 3 कटोरी करना है. परफेक्ट. एंड जो आपका जो रोटी और राइस दोनों है प्लेट में, उसमें से कोई एक ही चीज को चूज करना है. फिर आप प्रायोरिटाइज करिए कि रोटी खाना है कि राइस खाना है. अच्छा.
कोई दोनों को उसको कम करके आधा करके खा सकता है? Yes, you can. Or what a better approach would be कि you alternate between different days. क्योंकि अगर आप कम करने जाओगे तो वो दोनों चीज को अगर maintain, like if you try to include both roti and rice into your plate, it'll be in such minuscule quantity कि उससे वो संतोष नहीं मिलेगा. करेक्ट, तो कुछ गड़बड़ी वो satisfaction के लिए भी you हाँ। need a substantial quantity. ट्रू ट्रू, तो इसलिए सपोज मंडे को राइस खा लिया, ट्यूसडे को चपाती खा. सही है. That way you alter. And जो vegetables है उसको आप make sure that you're cooking in a good quality of oil or ghee preferably and don't overdo on it. ओके कि अब जो रोज खा रहे हो वही खाना है, बस उसको tweak करना है थोड़ा सा. ओके. पर हमारी इंडियन थाली में कुछ ना कुछ स्वीट भी होता है, चाहे वो घर का हो बाहर का हो, रोज एक स्वीट होता है. करेक्ट. तो वो चीज आप तब इंक्लूड करोगे जब आपका गोल अचीव हो जाए. क्योंकि राइट नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यू वांट टू अचीव पॉइंट बी. If you are going to include that sweet, it is going to slow down the journey. But once you achieve that point B, उसके बाद you can start incorporating these small things. ओके. That makes it a whole sustainable journey है. क्योंकि एक चीज होती है कि आपका जो गोल है वो आपने अचीव तो कर लिया, बट उसको मेंटेन भी करना है. और जब वो मेंटेन करने की बात आती है तभी वो जो स्वीट जो आप बता रहे हैं वो तो मेरे लाइफ का एक बड़ा सा हिस्सा है, हमारे इंडियन कल्चर का बड़ा सा हिस्सा. करेक्ट. So you cannot ignore it, you cannot avoid it. So you start making room for it. ओके. मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है और उनके यहाँ पे नॉन वेज रेगुलर बनता है किसी भी प्रकार का, हम डिटेल में नहीं जा रहे, उनको क्या करना चाहिए? यही सेम चीज जो लोग कर रहे हैं. हम लोग ने वेजिटेरियन के लिए दाल का 1 कटोरी से 3 कटोरी कर लिया. यहाँ पे उनको 1 कटोरी दाल ही रखना है, बट साथ में या तो कोई फॉर्म ऑफ मीट रखना है या तो सम फॉर्म ऑफ एग्स. रेस्ट एवरीथिंग एल्स कैन रिमेन द सेम. ओके. What could be an ideal day? I mean, we start with, let's say, 6 in the morning until 10 in the evening. Breakfast होता है, lunch होता है, शाम को कुछ हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, फिर शाम को डिनर होता है. So, what should be an ideal routine for somebody who wants to stay fit? क्या करना चाहिए? I will actually refrain from commenting on this because वो एक आइडियल नाम का अगर आप किसी चीज पे थप्पा लगा देते हो ना तो इट बिकम्स वेरी नॉन कॉन्टेक्स्ट एंड काफी लोगों के लाइफ में वो फिट नहीं होगा. एंड दैट बिकम्स अ सेकेंडरी रीजन फॉर देम टू गिव अप एंड बी लाइक कि फिट होना हमारी बात नहीं है क्योंकि ये 4 बार खाने को बोल रहा है. मेरी लाइफ तो इतनी स्ट्रेसफुल है कि मैं मेनली 2 बार खा सकता हूँ दिन में, यू नो. या फिर एंड ऑन द ऑपोजिट साइड माई लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल दैट आई ऑलवेज वांट टू ईट समथिंग एवरी 2 आवर्स ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो. तो इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल. यस, वेरी वेरी सब्जेक्टिव. पर मान लीजिए कोई न्यूट्रल है, कोई ओपन माइंडेड है, कोई समझना चाहता है, फॉर अ लार्जर ऑडियंस दिस इज प्रिस्क्राइब, करना नहीं करना आपके हाथ. व्हाट इज प्रिस्क्राइब? It is very, I will again refrain from commenting. Okay. Because I genuinely, I believe that the solution has to be individualistic. Okay. चलिए इसकी रिवर्स बात करते हैं. इसकी रिवर्स बात ऐसी है कि there are fads के भी 16 आवर फास्टिंग होना चाहिए, 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए. वहां पे आप क्या कहेंगे? It's a great tool. क्योंकि at the end of the day वो फास्टिंग से क्या हो रहा है, you are restricting your eating window. आप दिन में सिर्फ 8 घंटे खा रहे हो, 16 घंटे फास्ट कर रहे हो. अभी आप नेचुरली अगर आप सिर्फ 8 घंटे खा रहे हो दिन में तो उस 8 आवर्स में आप कितना ही खा लोगे. बट नेचुरली यू आर क्रिएटिंग दैट सेम प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग अ डेफिसिट. बट इसके कई लिमिटेशंस हैं जो कोई बताता नहीं. वन इज दैट एक तो ये सस्टेनेबल नहीं है. ओके. फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सर्टेन पीपल विल बी पीपल विल कम एंड आर्ग्यू नहीं मैं तो 6 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ. ठीक है, ग्रेट, वंडरफुल. देयर विल बी केसेस लाइक दैट. But for everybody, it is not sustainable. Secondly, if you are highly stressed, or if you are on insulin medications, yeah, or if you are a pregnant woman, or if you are going through hormonal issues as a woman, then in such a case, again, intermittent fasting is something that you would want to be very mindful of before implementing in your life, because it can then come and backfire. Okay, fine. So I think we have been talking a lot about diet as of now. But मुझे ये बताइए कि बहुत सारे डाइट के एरिया में भी बहुत सारे मिथ है जिस पे हम लोग बात करेंगे. But typically, what is the biggest myth in terms of fitness in India as on today? Because आप बहुत सारे clients को मैनेज करते हैं, सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड के लोग आपके पास आते होंगे. What is the biggest myth? That fitness is expensive. Okay, अच्छा. उसका आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, यानी क्या उसमें उनको कुछ दवाई लेनी पड़ती है? नहीं, लोगों को लगता है कि हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव, विच इज व्हाट कैपिटलिज्म हैज मेड अस बिलीव. We won't get into that side of things. You know, a packet of quinoa will cost you X amount of rupees as opposed to rice will cost much lesser. You know, or that के blueberries इतनी महंगी आती है, but उसके comparison में आप देखो guava is equally
effective and it is much more affordable for us Indian population. Similarly, आप अगर as a vegetarian, मैंने बोला था कि आपकी दाल की quantity increase कर लो, तो आप तूर दाल ले लो, मूंग दाल ले लो, छोले ले लो, राजमा ले लो, all of these things that you take, they are all not expensive, but it's just made to believe that healthy food मतलब avocado हो गया, quinoa हो गया, sourdough breads हो गया, या like fancy vegetables हो गए. नहीं यार, अपनी इंडियन सब्जियां भी at the end of the day, the tweak which I said, which is to be mindful about the quality and quantity of oil that you're using in the sabzi, if you look at it from my lens, it is nothing but a salad. Okay, so what is the definition of a salad? It's a mixture of vegetables. अपनी जो इंडियन वेजिटेबल्स है, सब्जी जो बनती है घर पे, it is made out of vegetables. You make this one tweak, your vegetable becomes a salad per se. Correct. Okay. पाव भाजी आप देख लो फॉर एग्जाम्पल, while we are in this topic, पाव भाजी आप देख लो फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है पाव भाजी? If you look at it from my lens and the way we make it, it is nothing but a salad. Oh yes. Yeah, it has a mixture of vegetables. They're boiled together, they're mashed together, and they add some flavor to it in terms of पाव भाजी मसाला, ताकि वो appetizing लगे. और उसके अंदर बहुत सारा बटर डालते हैं. हमें बस उस बटर कंपोनेंट पे ध्यान रखना है. अगर आप उस पे ध्यान रखोगे, आप हर रोज पाव भाजी खा सकते हो. परफेक्ट, ग्रेट. सिंस आप खाने की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी फूड की आइटम्स की बात की है, तो हम लोग एक सेक्शन जंप करके वापस इस पे आते हैं, बिकॉज आई थिंक लेट्स कवर दिस अप राइट अवे बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट इट. व्हाट आर द बेस्ट अवेलेबल प्रोटीन ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियंस? Oh, there are so many. In fact, I have created a list of my top vegetarian protein sources. For those of you who are watching, just drop me a DM called Veg Protein and I'll send you that entire list for free. Perfect. कुछ सैंपल बता देंगे आप? सैंपल हो गया, जैसे कि पनीर तो सब जानते हैं, टोफू भी सब जानते हैं, बट other things which I mentioned, तूर दाल, राजमा, छोले, और मूंग दाल, चौली, all these lentils, मसूर दाल, they are quite rich in protein, but at the same time they have 3 times of carbohydrates as well. So while they are rich in protein, you have to be mindful about its consumption quantity. Okay, fine. हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमें अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए. मान लीजिए अगर मैं 70 किलो का, तो मुझे 70 ग्राम चाहिए, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे मैनेज करूं? बिकॉज मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए? आपको पहले तो यू मस्ट लुक एट डिवाइडिंग इट इक्वली थ्रू डिफरेंट मील्स दैट यू आर कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. सपोज आप दिन में 3 बार खा रहे हो, एंड इफ यू नीड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो आपको 73 में डिवाइड करना है, which is somewhere around 23 grams of protein, right? One easiest way which you can get is through whey protein. एक स्कूप आप ले लेते हो, तो that is 23 grams of protein. That is one meal sorted. उसके अंदर obviously with whey protein you put in a lot of other items which we tell our clients as well कि आप इसको इस चीज के साथ बना लो, तो उससे complete meal बन जाता है आपका. Then दूसरा हो गया आपका लंच में आप ले लो for example 100 grams of tur dal, that is around 22 grams of protein, but I won't say take a full 100 grams of tur dal, maybe take 80 grams of tur dal, take some amount of rice as well. That's where you get 3 katoris of dal and little bit of rice and the sabzi, तो वहाँ पे आपका 23 grams of protein बन गया. And then dinner में आपका वापस 23 grams अगर प्रोटीन करना है, तो you take around 100-120 grams of paneer, and उसके again you can combine it with any carb source that you like, whatever you like. मैं for example आज रात को मेरे यहाँ पे बन रहा है is tawa pulao which is being made. So I'm having tawa pulao with lots of vegetables and lots of paneer in it. So my rice and this thing became a combination. Last night I ended up having noodles. Okay. I made noodles. Noodles भी क्या रहता है? The noodles is basically my carb source. मैंने noodles बनाया, उसके अंदर vegetables डाले, वो मेरा noodles बन गया. And मैंने पनीर लिया, पनीर की मस्त में सोया सॉस में ग्रेवी बनाई, उसके अंदर भी vegetables डाले. So it became a complete wholesome meal. Okay. So this way you have your 3 meals sorted out. 23 grams of protein in each meal. That's 69 grams of protein for your entire day. Correct. लोग इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं, लोग सेलिब्रिटीज को सुनते हैं. अक्षय कुमार कहते हैं शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए. तो आम इंसान को क्या करना चाहिए? जो वर्किंग है, वर्किंग क्लास है, उनको क्या करना चाहिए? Again, this comes down to very individual context, right? अगर वो बोल रहे हैं कि वो 7 बजे के बाद नहीं खाते because वो सो भी जल्दी जाते हैं. Okay. He sleeps early. I don't know the exact time that he sleeps, but if he wakes up at 4 in the morning, but obviously वो जल्दी सो रहे हैं. अगर वो जल्दी सो रहे हैं, तो they have to make sure that they are eating at least 2-3 hours before their bedtime. But अगर मेरा काम ही ऐसा है कि मैं रात को 12 बजे के पहले सो नहीं पा रहा हूँ, तो I cannot have my dinner before sunset. If I have my dinner before sunset, तो मेरे को सोने के टाइम पे मुझे जाहिर है कि भूख लगेगी, और उस भूख से मेरी नींद भी अफेक्ट होगी. In general, having your dinner 2
2.5 maximum 3 hours before your bed is a sweet spot. कि तब तक क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका रहता है एंड योर बॉडी कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स मेलाटोनिन प्रोडक्शन, बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है एंड एज अ रिजल्ट यू आर एबल टू गेट बेटर स्लीप. करेक्ट. स्लीप एक बड़ा फैक्टर, उस पर मैं आ रहा हूं. मुझे ये जानना था कि यू एज अ कोच, आप सिस्टम को रीसेट करते हैं, आप गट पे काम करते हैं, आप बॉडी पे काम करते हैं, आप डाइट पे काम करते हैं, बट लेट्स स्टिक टू द शेड्यूल रीसेट राइट नाउ. अगर मुझे अपने आप को ठीक करना है, आई एम रेडी टू प्रायोरिटाइज माई हेल्थ, जो बहुत लोग करना चाहते हैं, व्हाट शुड बी अ नॉर्मल डे लाइक, इवन इफ यू आर वर्किंग हैवी, प्रोफेशनल है, सब कुछ है, कॉर्पोरेट लाइफ है, फिर भी क्या करना चाहिए? सुबह और शाम क्या करना चाहिए? किस तरह से आपका दिनचर्या होना चाहिए? First and most important thing, morning sunlight exposure. ओके. One of the simplest free thing that you can do. I told you fitness is not expensive. Getting sunlight is free, literally free. All you have to do is just make sure that you're waking up before 8 a.m. and you're soaking in 10 to 15 minutes of direct sunlight onto your eyes and onto your skin. Meaning, direct sunlight meaning बीच में कोई windows भी नहीं होनी चाहिए या आपके गाड़ी का ग्लास भी नहीं होना चाहिए. Specs are still fine. That sunlight rather has such a profound power in terms of managing your cortisol melatonin curve inside your body in such a way that it gives you peak amount of energy to power through your course of the day. And second thing is it will ensure that 13 to 14 hours later from the time that your eyes first see the sunlight, your body is preparing for winding down and sleeping. करेक्ट. तो मेरा पूरा दिनचर्या कितना हो, कैसा होना चाहिए? अगर आपने सुबह मुझे बोला कि मुझे 7-8 बजे उठ जाना है. Correct. First thing you're doing is you're waking up before 8 o'clock and you're getting that sunlight exposure. And another thing that you must try to do as soon as you wake up is have at least 500 ml to 750 ml of water. Okay. लोग क्या करते हैं कि उठते ही सीधा चाय पीते हैं या अपना पहला ग्लास ऑफ पानी हैपेंस एट 11 o'clock in the afternoon. I've had such clients as well. And फिर कंप्लेन करते हैं कि मुझे इतना जलन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है. आप अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखो. So again, why it is important to understand the why. Once you understand the why, the what and the how becomes easy. What we've learned. वो पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि आप पूरी रात 8 घंटे सोए हो, 7 घंटे सोए हो. Your body has been dehydrated overnight. As a result, blood circulation बॉडी में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, थिक हो जाता है. तो आप जैसे ही पानी पीते हो तो धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है अपने बॉडी के अंदर. प्लस दैट वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर गट हेल्थ, क्योंकि आप देखोगे अपने गट के इनसाइड के अंदर देयर इज स्लाइमी फ्लूइड. To maintain that slimy texture of it, you need hydration. Plus, our body is made up of 60 to 70% of water, and you make sure that you are retaining that level. Kickstarting your morning with hydration, 500 to 750 ml of water is that one particular thing will have a profound impact again in terms of how your day is going by and how your health is overall. तो ये दो चीजें आप जिस तरीके से अपना मॉर्निंग कॉन्कर करते हो, धीरे धीरे फिर आप अपना लाइफ मतलब अपना दिन कॉन्कर करने शुरू कर दोगे और वो जैसे ही रिपीट होता है आप अपनी लाइफ भी कॉन्कर करना शुरू कर सकते हो. स्टार्ट योर डे विद एटलीस्ट दैट मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर एंड गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन. उसके अलावा फिर आपका दिन काफी डिफरेंट रहेगा बाकी के लोगों से. सो देन अगेन दैट्स वेयर कॉन्टेक्चुअल थिंग कम्स इनटू पिक्चर. बट सिंस वी आर लुकिंग एट ओनली 5 थिंग्स टू फोकस ऑन, मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर हो गया, आपका मॉर्निंग हाइड्रेशन हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, गेटिंग इन 7,200 स्टेप्स एवरी डे is very crucial for maintaining your health, or rather reducing your all-cause mortality risk. Again, this is proven by science, wherein they had studied human beings for 15 years and they followed the data and tracked how many steps they are taking in a day for 15 years non-stop and correlated that with the all-cause mortality. मतलब आपके मरने के chances types. So they saw that your all-cause mortality is very high when you are having 2,000, 3,000 steps in a day. But the moment you go from 2,000, 3,000 steps a day to 6,000, 7,000 steps a day, the graph falls drastically. And what they also noticed is that once you increase your step count further, this graph starts to taper off in such a way that कि अगर आप 8,000 से 10,000, 10,000 से 12,000 पे भी जाते हो, जो benefit आपको return में मिलता है for putting in those 2,000 extra steps is not as significant as the kind of benefit that you would get from going from 3,000 to 6,000 to 7,000 steps. So that's where my sweet spot that I advise to most of my clients is at 7,200 steps. Yeah, 10k steps is a big myth which has become a marketing thing because कहाँ से आया मुझे मत पूछो, but people love adhering to it. But you don't need to be hard on yourself because that benefit that you get from increasing your step count in terms of your health, okay, I'm only talking in terms of health and longevity, that you get from 8,000 to 10,000 steps is not as great. So you shouldn't be stressed out about it कि अरे shit मेरा 10,000 steps नहीं हुआ तो मेरा दिन पूरा बर्बाद हो गया. नहीं, 7,200 is actually achievable as well. Sounds realistic,
And most importantly, target 50,000 steps for the entire week. ओके, तो तो- आप ये कह रहे हैं कि 7,500 स्टेप अगर मेरे दिन के हो जाते हैं तो मेरी लॉन्जिविटी बेटर हो जाती है। Yes. और अगर मैं अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को मैनेज करता हूँ और ये 7,500 स्टेप मैं ले लेता हूँ दिन के, Yes. तो आई थिंक आई एम बीटिंग द ओवरऑल एवरेज। Yes, 100%. You are way above the overall average. This is again from that perspective. Extra steps will help you burn more calories. If you are getting those 12,000, 14,000 steps in a day, and if your lifestyle is supporting it, don't use my words as a reason to slack off and come down to 7,200. Correct. This is only, again, since I've said this tape, I have to give this disclaimer. So this is only for those people who are really struggling कि अरे 6,000 मुश्किल से हो रहा है, 5,000 स्टेप्स मुश्किल से हो रहा है, बस तुम्हें 1-2,000 और निकालने अपने लाइफ। एंड इसके साथ एक और चीज है कि आप डेली अपने आप को त्रास मत दो। अगर आप हफ्ते में 50,000 स्टेप्स कवर कर रहे हो तो भी अच्छा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टार्ट माई वीक, Monday I've achieved, Tuesday I've achieved, Wednesday को 2-3,000 कम हो गए, I've only done 4,000-5,000 steps क्योंकि यार back to back meetings, I just couldn't get up from my seat. So no problem. You cover up those 1,000-2,000 steps later on in the week in such a way that by Sunday comes, क्योंकि आपने Monday को शुरू किया, by Sunday comes, you are completing 50,000 steps. करेक्ट, यानी कल परसों तरसों में आप कवर कर लो। Correct. अच्छा, पर ये एक बात और आई है अभी बातचीत के दौरान कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, इस पे आप क्या कहेंगे? Chair का man made, yeah. It's like how this artificial light is man made. अगर आप पुराने जमाने में देखोगे तो we wake up with the sun, we sleep with the sun. As the sun goes down, we sleep as well. But because of this artificial light, our body is going through stress. That is because the artificial light which is going in our mind, and that is affecting our sleep. I won't go into the physiology side of things, but similarly, humans are not designed to sit. क्या nature ने हमें chair दी है? नहीं ना, ये तो man made है to make our life comfortable. And sitting is the leading cause for sedentary lifestyle, and as a result, people are not getting even 4,000 steps in a day. करेक्ट, And that is the reason why people are correlating sitting to smoking. करेक्ट, क्योंकि आप मूव नहीं हो रहे हो, आपके स्टेप्स नहीं हो रहे। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन, ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज स्टार्ट अराइजिंग, करेक्ट, बैक पेन स्टार्ट्स अराइजिंग, बिकॉज अगर आप बैठे हो सिटिंग, नोबडी, लाइक वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड वुड बी सिटिंग इन अ प्रॉपर अपराइट पोजीशन। या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे पूरा लेट के पीपल सिटिंग। सो दैट इज अगेन लीडिंग टू पोस्चर रिलेटेड इश्यू। सो दैट्स द रीजन व्हाई सिटिंग इज कंसीडर्ड एज द न्यू स्मोकिंग। करेक्ट, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे हमारी दिनचर्या की, आपने बताया कि ये करना है, फिर शाम को कैसे एंड करना है, सोना कब है? शाम को is again when you start drawing boundaries, not just with regards to social commitments, but with screens, with work. सूर्यास्त हो चुका है, महाभारत में भी was a break. करेक्ट, So no matter what work you're doing, try to avoid it closer to bedtime. And use that time rather to nurture your relationships with your loved ones. आपकी family के साथ आप बैठो important चीजों पे, not just important चीजों पे, but spend, have a laughter. That again has a profound impact in terms of your body naturally settling down and preparing for a sound sleep. That okay. so screen so ideally what is the right time to sleep? कब तक सो जाना चाहिए तो आपको एक अच्छी क्वालिटी स्लीप आएगी? So somewhere around 10 o'clock, 11 o'clock would be a nice time as per ideal scenarios. Again, but Correct. world doesn't live in ideal scenarios. So again, that comes with a very big disclaimer that please don't be hard on yourself if you can't achieve that 10 o'clock wala sleep Correct. time. If you happen to sleep later also, it's fine. And just make sure that you cover those next 7-8 hours of sleep and don't wake up before that. But हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर आपको चीजें हासिल करनी है, रेडी टू पे द प्राइस, आपको बदलाव लेके आना है, आपको अपने जीवन में परिणाम लेके आना है, हम उसी से बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको एवरेज जिंदगी जीनी तो आप तो जी रहे हैं, तो ये आपका जो व्यूअर है वो चाहता है कि वो बदलाव लेके आएगा। He wants to bring that change in his life and he has to put in that thing which he needs to make it. So either it is make it or break it because he has to achieve that thing. तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट भी लेके आना होगा बिकॉज एक एवरेज माइंडसेट से आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप चाहे मितेन सर की जितनी भी काउंसलिंग ले लो, अगर वो माइंडसेट बना के नहीं आ रहा है तो वहां पे वो परिणाम लेके नहीं आ सकता। तो माइंडसेट का क्या रोल है यहाँ? So this is where business coaching is very different from fitness coaching. जो आप बोल रहे हो ना, वो business side of things में बहुत ही spot on है, impactful है, because I want to bring that change. But when it comes to your fitness, it is not a physical effort. It is more of a mental effort. And that mental effort has to be carefully handled for each individual because हर एक के सोचने के प्रकार अलग अलग होते हैं. Right. So you might not be having that 100% mindset that you would approach a business coaching. With fitness coaching, आपको बस action लेना है.
जैसे ही आप एक्शन लेते हो, इफ यू हैव टेकन द राइट एक्शन, इवन इफ यू नॉट टेकन 100% राइट एक्शन, इवन इफ यू आर टेकिंग 50% ऑफ द एक्शन, 30% ऑफ द एक्शन, इवन 20% ऑफ द एक्शन, इट विल गिव यू सम बेनिफिट इन रिटर्न, एंड दैट लिटिल बेनिफिट becomes your ray of motivation to then convince your mind that now is when I can push harder. Now is like, okay, अगर मैं 12 बजे सो रहा हूँ तो मैं 10 बजे पे कैसे आऊँ, तब जाके मैं अपने आप से ये चीज बात कर सकूंगा. बट अगर मैं पहले ही दिन पे आपको बोल दूं कि नहीं आपको 10 बजे सोना है और आप रोज 12 बजे सोते हो, आप तो पहले ही दिन पे गिव अप कर दोगे कि नहीं हमसे नहीं होने वाला. क्योंकि फिटनेस देखो, अगेन when you compare it to business side of things as well, right? With business, there is very big financial reward that a person gets in return, which is tangible. But when it comes to fitness, people are not prepared to put it at the forefront priority. You have to manage work, you have to manage family, you have to manage social commitments, and you also have to manage your personal time, spending time with yourself, that me time with which they say. इस बीच में festivals आने वाले हैं, birthday parties आने वाले हैं, weddings आने वाले हैं. So how to factor all of that into your journey? उसके लिए वो mindset को अच्छे से cultivate करने के लिए you need to meet the person where they are, start making them do small things, and let those small wins stack up to such an extent कि जब आपके उसको after that point if you tell them that okay you know आप यहाँ पे आए हो, अभी यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये जो next change आपको लाना है अपने lifestyle में वो आप लाओ, तो they will be a lot more comfortable and motivated and enthusiastic about bringing that change and actually will make it happen. Oh, okay, interesting. So fitness is a lot of science, coaching is a lot of science, but it's also an art. And that's what I keep telling my teammates as well कि ठीक है आपके पास डिग्रीज है, सारी है, आप सब पढ़ के आए हो, आपको पता है पेपर पे किसी को कैसे फिट करना है, बट ह्यूमन बीइंग है वो, उसके इमोशंस है. Correct. अगर अचानक से मेरे बॉस ने मेरे पे चिल्ला लिया इन द मिडल ऑफ माय वर्क डे, मेरे को ऑफिस के बीच में रोना आ रहा है और सिर्फ एक पीस ऑफ केक फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर प्लेस जो मेरे को बहुत पसंद है, सिर्फ वो ही पीस ऑफ केक मेरा रोना स्टॉप कर सकता है. नो प्रॉब्लम, गो हैव दैट केक, बिकॉज आई नो दैट वंस यू हैव दैट केक यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू कंटिन्यू विद योर जर्नी एज अपोज टू इफ आई टेल यू कि नो यू कैन नॉट हैव दैट केक. अरे जा यार नितिन, मेरे को ये नहीं करना है, तुम क्या करवा रहे हो मेरे से. ओके, तो आप मैनेजिंग इमोशंस पे ज्यादा काम करते हैं. Yes. ओके, ग्रेट. And as you rightly pointed out as well, getting fit is more of a mental journey rather than a physical journey. Physical journey becomes very easy once your mental journey becomes easy. करेक्ट. तो मेंटल हेल्थ और फिटनेस के बीच में क्या कनेक्शन है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, यानी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस में क्या कनेक्शन है? Oh, they are deeply connected with each other. आपके कोई क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे या कोई वाकया जो आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बिना नाम लिए आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई एग्जांपल? A lot of my clients have been able to get over their mood swings. A lot of my clients have been able to overcome their anxiety. A lot of my clients have been able to overcome even depression for that matter because of the physicalness that they have been working on. ये जो आप बोल रहे हो मेंटल हेल्थ, देयर इज अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड. वन इज दैट मेंटल हेल्थ इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर फिजिकल हेल्थ इन सच अ वे दैट 50% of depression cases are actually deficient in vitamin D. So by ensuring that you're physically having enough vitamin D, you're able to work on your mental health. That is the physiology side of things. But apart from that as well, your gut is your second brain. 95% of your serotonin, your body's serotonin, is produced in your gut, not in your mood, your happiness, your feelings. They're all originated in your gut. 66% of your neurotransmitters are produced inside your gut. 400% more melatonin is produced in your gut than the pineal gland, which is located in your brain. And more than 75% of your immune system is also hosted in your gut. Okay. So to work on your gut health, you have to work on your physical health, and as a result, it has a profound impact on your mental health. Okay, great. सिर्फ आपने गट की बात छेड़ी है यहाँ पे, और मैंने ये देखा कि यू हेल्प पीपल टू रीसेट देयर गट. तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप ये बताइए सिंपल भाषा में कि व्हाट इज अ गट, और दूसरा क्या आपने ये जो सारे केमिकल्स की बात की, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की, उसको भी सिंपल भाषा में बताइए कि कौन सा केमिकल क्या करता है, उसका आउटकम क्या होता है, और उसे किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. Okay, got it. So the biggest misconceptions people have about gut is कि वो आपका पेट है, small intestine है, but नहीं. Gut is your mouth to rectum. Okay. So your entire digestive system, your digestive tract becomes your gut. Okay. Now when we look at, say for example, melatonin, one of the chemical which I mentioned. Melatonin is your sleep hormone. Okay. Which जिससे नींद आती है.
यस, कि आपको नींद ओके अच्छे से आए, अच्छे क्वालिटी से आए और टाइमली आए। ओके टाइमली आए और टाइमली जाए भी। ओके आना तो एक बात है, लोगों को आती है तो ही रह जाती है, जाती नहीं है। सो दैट मेलेटोनिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट 400 times more than what it is produced in your brain. When I talk about neurotransmitters, so sorry, when I talk about I don't know why I lost my chain of thought. Suddenly there's a सर brain. सर सेरोटोनिन क्या करता है? Yes, serotonin is. I'm having very big brain freeze right now, so I'm not able to dive into it. I will have to come back to you in a bit on that. ग्रेट। ये भी सुना था कि कार्टिसोल जो आपको बहुत स्ट्रेस में डालता है, वो भी जब हम लोग कम सोते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या बहुत क्या क्या चिंता चीज? करते हैं, कार्टिसोल। Cortisol, तो yes. हाँ हाँ, तो ये सारे केमिकल का नाम सुन के आम इंसान डर जाता है या कंफ्यूज हो जाता है। हमारे जैसे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार नितिन सर की हेल्प लेके थोड़ा समझ लेते हैं कि ये करता है, ये वो करता है, और इसके ऊपर हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। Well, again, ये सब चीजों के बारे में मैंने काफी कुछ लिखा हुआ भी है, so you know if anybody wants to dig deeper into it, they can always reach out to us on DM, and we'll be more than happy to share परफेक्ट that परफेक्ट। आई information with थिंक you. इट इज द बेस्ट थिंग वेयर पीपल कैन एक्चुअली रीच आउट टू नितिन सर, और वो बहुत सारी चीजें आपको गाइड कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये वर्क फ्रॉम होम की कल्चर में लोग घर से काम करते हैं। आपने जैसे बताया कि भी ये चेयर और लाइट और ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, हम अपने कंफर्ट के लिए यूज करते हैं। उस माहौल में हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? अ सिंपल वे टू कीप योरसेल्फ फिट, assuming somebody is working night shift. Yeah. So you have to accept that you are working night shift, but research has also shown that night shift people are prone to a lot more illnesses than people who work day shifts. So I won't venture into that side of things. बट say for example लोग नॉर्मल बंदा है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उनके लिए चेयर टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, लाइट्स आ रही है इतनी सारी, सिंपल शिफ्ट्स दैट दे नीड टू स्टार्ट मेकिंग इज के हर 1 घंटे में आप उठो भाई चेयर से, वॉक अराउंड, फिर चाहे वो अपना पानी लेने जाना हो या वॉशरूम के लिए भी क्यों ना जाना हो, वेक अप, टेक दोज ब्रेक्स इन बिटवीन टू स्टैंड अप एंड मूव अराउंड। एंड लाइट की अगर आप बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आप अंधेरे में रहने को मैं बोल रहा हूँ, बट स्विच टू डिम येलो लाइट्स। अगर आपने अभी भी नोटिस किया रहेगा कि मेरे यहाँ पे अभी बिकॉज इट्स एन इवनिंग टाइम there's a yellow dim light which is coming in the background, so switch to yellow dim lights because that again is giving is less harmful for your melatonin than white light. And अगर आपको और भी additional extra mile जाना है तो you get those dim lights that come from a lower incidence angle, which means that like a table lamp or a floor lamp or something like that, जो येलो कलर का हो, थोड़ा सा dim हो, आपके घर में after sunset you just have illumination in your house using those kind of lamps. ओके ग्रेट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ, अज्यूमिंग कि मान लीजिए आप ओवरवेट हैं और आपको पता है कि फिटनेस जर्नी मुझे शुरू करनी है, क्या 2-3 बदलाव वो लेके आने चाहिए जिससे इमीडिएटली एट अ फैमिली लेवल, बिकॉज अगर आपके फैमिली में कोई एक बंदा फिट नहीं है तो ज्यादातर ये नोटिस किया गया कि पूरे फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो कहाँ से शुरू होता है? व्हाट इज द ग्रास रूट इशू? Grassroot issue is actually the grocery shopping habits which get passed down the generations. इसको सही तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप वही कह देखिए रहा था। कि 2 फैमिलीज है, फैमिली ए फैमिली बी, दोनों के यहाँ पे नया बच्चा पैदा हुआ है। अभी दोनों फैमिली सुपरमार्केट में से अपना घर का राशन लाते हैं। अगर आप सुपरमार्केट में देखोगे तो देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल, देयर इज होल फूड्स, देयर इज फ्रेश प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, there is juices, packaged juices, biscuits, namkeens, packaged ready to eat foods and all that, right? They're all divided into different aisles. Family A and family B दोनों के यहाँ पे बच्चा हुआ है। Family A जाती है सुपरमार्केट में और वो सिर्फ जो पैकेज फूड सेक्शंस है, जो आयल्स है, वहीं से खाना लाती है अपने घर के लिए पूरे महीने का स्टॉक, एज अपोज टू फैमिली बी जो होल फूड्स, फ्रेश प्रोड्यूस, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट पे ज्यादा फोकस करती है, एंड दे ओनली गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट aisles into their house. So while growing up, as a new kid, my definition of food, जो family A का बच्चा है, what is his definition of food going to be? अगर वो कभी भी जा रहा है अपनी खुद की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, वो तो सिर्फ उसी आइल में जाने वाला है जहाँ पे सिर्फ पैकेज फूड्स अवेलेबल है, क्योंकि बचपन से वही सीखता आया हूँ मैं। करेक्ट। मेरा डेफिनेशन ऑफ फूड वो है। सपोज टू फैमिली बी का बच्चा, वो कभी वो साइड जा ही नहीं वाला, क्योंकि उसको पता है कि खाना तो इधर है, वो सब जंक है। सो दैट इट्स
it's a very big debate which we keep having even internally amongst our teams and otherwise as well, that obesity doesn't run in your family. It is the grocery shopping habits that get passed down the generation which determine your true health and fitness. ओके, सिंस आपने यहाँ पे पैकेज फूड्स की बात की है, आपने शॉपिंग की बात की है, कि हम लोग कुछ अलग बात करते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताइए जो हमें इंडियन फैमिलीज बाय करते हैं या लेके आते हैं हर महीने, हर 3 महीने में, जो हमें कम करने से ओवरऑल फायदा हो। क्या कम करना चाहिए? Packaged foods, processed and packaged foods is one of the leading causes for fatty liver, obesity related issues because they are made to be hyper palatable. Hyper palatable का मतलब ये है कि आप अगर एक खाते हो तो you cannot stop at one. You want to continue having it further. ओके, And आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग वो बना रहे हैं उनका काम ही यही है कि लोग ज्यादा खाते रहे उससे ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। तो दे विल मेक श्योर दैट दे पुट इन द राइट फॉर्मुलेशंस टू एंश्योर वो डिसीजन आपका होने वाला है। वो डिसीजन आपका होने वाला है इन द सेंस आप उन चीजों को ज्यादा लाओ मत अपने घर में। अगर घर में एक्सेसिबल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप उसको इतना रेगुलरली खाओगे नहीं। और अगर आप खाते भी हो तो यू बी माइंडफुल अबाउट इट कि हाँ ठीक है हफ्ते में एक बार खा लिया, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू हैव इट एवरी डे 3 times a day, that's where it becomes a problem. The devil always lies in the dosage. Oh, lovely. The devil lies in the dosage. Okay, great. Wonderful line. आपके लिए सेल्फ लव क्या है? मेरे लिए सेल्फ लव क्या है? तो देखिए, मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा है कि मेरे पास डीएम आया था, 18 साल की लड़की ने लिखा है कि आई लव चॉकलेट्स, मुझे केक्स पसंद है, पेस्ट्रीज पसंद है, एंड दिस इज माई सेल्फ लव, बट मुझे मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, देन आई नॉट एक्सप्रेस सेल्फ लव। For me, my self-love would be more like understanding my body's needs and being able to fulfill them without affecting my long-term health or my current fitness levels. मितिन सर, यहाँ पे चीज ऐसी है कि टीनेजर है, उनके यहाँ पे हर हफ्ते में एक पार्टी होती है जहाँ पे किसी फ्रेंड की बर्थडे है या नाइट आउट है, XYZ है, कॉलेज में गए हैं, पिज्जा खा लिया, पफ खा लिया, कुछ भी खा लिया, आड़ा टेढ़ा, बड़ा पाव खा लिया, Yes. और वो ना भी नहीं बोल सकते हैं। एक बड़ा सा थिक शेक पी लिया तो पूरे हफ्ते की कैलोरी आ चुकी है, और उनको वजन भी कम करना है, उनको इंस्टाग्राम लुक भी चाहिए। ये सारी जद्दोजहद में उन्हें वो सेल्फ लव करेगी, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाएगी, क्या करेगी? हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस? प्लीज बताइए, बिकॉज लोग आपके पास इसीलिए आते हैं। Correct. So the best way to strike a balance, which we actually promote as well with our clients, is कि आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान तो दे रहे हो, बट एवरी वीक एक बार जाके पूरा चीट डे ले। ओके, उस चीट डे पे, फिर चाहे वो संडे को या कोई भी दिन पे है, उस चीट डे पे मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आपको क्या नहीं खाना है या क्या खाना है। इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। वन इज लाइक आई सेड कि वो संडे को ले लो या कोई भी दिन ले लो, दिस वे यू आर एबल टू प्लान योर चीट डेज विद एनी सोशल कमिटमेंट्स व्हिच माइट बी कमिंग अप। सपोज किसी का बर्थडे पार्टी आ रहा है या कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू हैव माय चीट डे ऑन दैट डे। Second thing is, it helps you keep your cravings a little bit in check by controlling your willpower. How I will tell you this hack, which I tell all my clients as well. प्लीज। कि अगर आप मंडे को अपना डाइट देख रहे हो, ट्यूसडे को कर रहे हो, वेडनेसडे को अचानक से मन होता है कि यार वो एक चीज बर्स्ट पिज्जा अगर आ जाता तो बहुत मजा आता। No problem. Write it down. Write it down in a special list, either a notepad or in your phone in a notes. You have a special list. You write down कि आज मुझे इस चीज की क्रेविंग हो रही है, बस लिख लिया। टुडे यू आर नॉट गोइंग टू डू इट क्योंकि आज आपका चीट डे नहीं। थर्सडे आ गया, फ्राइडे आया, वापस मुझे क्रेव हो रहा है यार, समोसा एक आ जाता तो बड़ा मन कर रहा है समोसा खा लूं। नो प्रॉब्लम, राइट इट डाउन एंड यू टेल योरसेल्फ एज वेल कि आज मैं अपना डाइट कर रहा हूँ तो मैं ये आज नहीं खाऊंगा, जब मेरा चीट डे आने वाला है जो इस संडे को आने वाला है मैं उस दिन खाऊंगा। So every time you are writing it down, you are telling yourself that कि जब संडे आएगा तब मैं वो खाऊंगा, आज मैं डिटर नहीं करने वाला हूँ अपने रूटीन से, अपने प्रोग्राम से। तो वैसे ही पूरा हफ्ता चलेगा। हफ्ते में आपने हर एक दिन कुछ ना कुछ नोट किया है। There are 7 items in the list. Now Sunday comes, you open this list and when you look at the 7 items over there, you will realize that 90% of those things you're not even craving anymore and only 10% of those things you actually are, and वो जो 10% बची है उसको जाके आप fulfill करो। वंडरफुल, वंडरफुल, Right? So that helps you long term adherence. करेक्ट। और उस वक्त आपने अपने माइंड को ये कन्विंस भी कर लिया कि ये होने वाला है
हाँ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा हूँ, मैं करूंगा ये, बट मैं जिस दिन मेरा प्लान है उस दिन करूंगा। तो आप स्मार्टली अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो, अपने बॉडी को खुश कर रहे हो, और बोली थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन, परसों तरसों मिल लेगा, करेक्ट। तो आप मान भी जाते हो और आप यस, दुखी भी नहीं होते। and that delayed gratification in fact gives greater joy as well in most of cases कि सही यस बात। मैंने पूरा हफ्ता वेट किया है, अब तो मैं इसको मस्त में मजे तो लूंगा। मितिन सर के पिटारे से एक जबरदस्त एक आया है, आई थिंक व्यूअर्स को मिल चुका है। करेक्ट। मितिन सर, यहाँ पे लोग तकलीफ आती है कंसिस्टेंसी की। सब तय करते हैं मैं ये करूंगा, अभी दिसंबर आ चुका है, 26 आने वाला है, लोग बहुत सारे रिजर्वेशन बनाने वाले हैं, आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आने वाली इसके बाद। हाउ डू वी मेंटेन कंसिस्टेंसी? How do we maintain consistency is the fact that you don't need to be in a rush to achieve something. अब अगर आप रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं रखोगे तो आपका जर्नी आपके लिए नेगेटिव होते जाएगा एंड आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। पर मिथिन तो सर, फरवरी में मेरे कजिन की शादी है, मुझे संगीत में अच्छा लगना है, मैंने नया सूट लिया है या यस XYZ लिया है, यस मुझे जबरदस्त लगना है, क्या करना पड़ेगा? करेक्ट। तो उसके लिए आपको उसके 6 महीने पहले से आपको पता था कि फरवरी में शादी आने वाली है, तो तब से आपको शुरू करना पड़ेगा, ना कि नवंबर या दिसंबर आने के बाद। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ओके ठीक है, आप फरवरी में शादी के लिए फिट तो हो गए, उसके बाद क्या? फिट तो लाइफ लॉन्ग के लिए रहना है, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ट्रू। So that mindset we try to inculcate with our clients. And there's one more thing that I would like to add over there कि आप ये समझ के चलो कि आपको फिटनेस और लाइफ के बीच में चूज नहीं करना है, आपको फिटनेस के साथ अपनी लाइफ को भी मेंटेन रखना है, और वो मेंटेन कैसे रखना है ये हम आपको सिखाते हैं। और उस वजह से हमारे क्लाइंट्स कंसिस्टेंट रह पाते हैं और उस वजह से उनको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स दिखते हैं। Great. I think we had a fantastic session by now, and I think I am getting a lot of DMs here which mentioned, और जहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सर का डाइट क्या है, सर कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, सर का शेड्यूल क्या है? My schedule is very simple. Like I said, wake up, morning sunlight exposure, morning hydration, I go to the gym, I come back from the gym, फिर मैं लेता हूँ 3 types of fruits, फिर वो fruits काफी वेरी होते हैं on a daily basis. उस fruits के half an hour later is when I take a protein shake along with a few special ingredients which is a proprietary of our MSF. We call it the MSF Protein Power Smoothie. Actually MSF Power Protein Smoothie, जो कि हमारे clients भी लेते हैं, तो यही हमारा सबका breakfast होता है। और इनफैक्ट वो Power Protein Smoothie इतना डिलीशियस है एंड इतना एनर्जाइजिंग है कि जो क्लाइंट्स हमारे साथ एक बार जुड़ जाते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए अपना ब्रेकफास्ट को चेंज कर लेते हैं उस चीज के लिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि जब उनके आजू बाजू वाले लोग उनको पूछते हैं कि तुम्हारे में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, तो वो बोलते हैं मितेन से जाके पूछो, उसने मुझे पावर प्रोटीन दिया हुआ है। So that is our breakfast. After that, I wait for an hour or so, and then I have my cup of black coffee, and while working and stuff like that. Then my lunch happens. Lunch में, like I mentioned, 3 katoris of dal, right? With little bit of rice, some sabzi on the side. ये मेरा lunch हो गया. Then in the evening, I am generally not very hungry, तो मैं डायरेक्टली डिनर करता हूँ, और डिनर में मेरा होता है either some form of पनीर और tofu with some form of salad. Again, like I said, pav bhaji is also salad. नूडल्स के अंदर जो वेजिटेबल्स आते हैं वो भी सैलेड हो सकता है, एंड दैट इज पेयर्ड विद सम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर चाहे वो राइस हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, चपाती हो गई, या व्हाटएवर इट इज, इवन पिज्जा हो गया फॉर दैट मैटर। सो दिस इज माय डाइट एंड दिस इज द काइंड ऑफ डाइट दैट आई गिव टू माय क्लाइंट्स एज वेल, ताकि वो डिलीशियस भी रहे एंड आपको मजा भी आए उस चीज को खाने के लिए, एंड उससे आपको रिजल्ट्स भी मिले। तब जाके इट्स बीन 10 years that I've been into this journey personally, and I've been able to sustain it for so long. आपका चीट डे कब होता है? Usually on a Sunday, otherwise Every Sunday? Every Sunday, 100%. Without fail, there is. I will never miss a cheat day. Oh, okay, great. कुछ रैपिड फायर होगा मितिन सर आपके साथ. Okay. Are we ready? Okay, great. Are you a gym person or you prefer outdoors also? I prefer going to the gym. Okay, great. As we say, is it just one cheat meal or it's a cheat day? It is a cheat day. You have that entire day to enjoy yourself. Okay. Chocolates या pastries? Pastries. इसका texture ही कुछ अलग है, जो मुंह में आते ही पिघलता है, तो मजा आती है. No chocolate can give that texture. Meditation and music therapy? Music therapy. Okay, great. 6-pack abs या peace of mind? Peace of mind. Any day. Okay. It has a profound impact in terms of the relationships that you share with your loved ones. 6-pack abs has nothing to do with it. Correct. Protein shake या green juice? Protein shake.
makes your life much more convenient. मॉर्निंग मोटिवेशन रील या इवनिंग वॉक विद अ फैमिली मैन? Morning motivation reel. यानी कुछ पढ़ा आपने, सुना, देखा? Okay, yes. Or मॉर्निंग evening walk with मोटिवेशन या इवनिंग वॉक विद अ फैमिली? evening walk with family. आर यू इनटू फिटनेस गैजेट्स? No, nothing. Zero. It's unnecessary data which clutters your mind, and even if you're feeling good and if your tracker is telling you, oh, you did not recover enough, you end up feeling bad, you end up having a shitty day. So don't rely on that data. Usually it's not 100% accurate either. And let your body be your own feedback mechanism in terms of how you want it, how you want to feel. One big myth which we all Indians live with for health and fitness. One big myth which should be avoided. Yeah, which should be broken. Carbohydrates को खाना छोड़ दो. नहीं. Carbohydrates, like I don't have a single client who eats under 150 grams of carbohydrates, and most of my clients are on average around 250-300 grams of carbohydrates every day. Okay. Fast food या home cooked food? Home cooked food. Okay. One habit for Gen Z which they should cultivate from early days. Start putting things into action rather than continuously consuming content and data which is just sitting idle in your head, and probably after a few days you're even forgetting about it, but rather implement the things which you are listening to and let it show its outcome to you. आप कितना सोशल मीडिया यूज करते हैं, कितने समय के लिए? Probably less than 1.5 hours a day. You're training one celebrity right now. Can you name them if you're okay with that? So, since they are not okay with it. Is it from Bollywood or is it not from Bollywood? Not from Bollywood. So they are visible on your page. Yes, but let people guess. बहुत सारे लोग आपको डीएम करके ज्वाइन करने वाले हैं, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस कि अगर आप किसी का नाम दे सकते, चलिए ओके, मेक इट इजी, चलिए, इज इट अ मेल और फीमेल? It is a male. I can tell you somebody I've coached in the past. I can take Harsh Beniwal. ओह वंडरफुल, ग्रेट। उनका बैकग्राउंड बता दीजिए। Harsh Beniwal is a famous YouTuber, one of the biggest YouTube content creators of India. उन्होंने एक दिन एक डिसीजन लिया कि उनको अपनी बॉडी में बदलाव लाना है, तो उन्होंने हमें रीच आउट किया। हमने उनको कड़ी चावल खिलाए और उस कड़ी चावल खा के उनको 6 पैक एब्स आए। वंडरफुल। And the whole internet went crazy. How did Harsh Beniwal do it? ग्रेट। की फिलोसॉफी डिस्क्राइब करें, वैसा एक कोट बताइए। Success is never owned, it is leased, and the rent is due every single day. ओह लवली, ग्रेट। और 2026 के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं? बिकॉज आप तो बहुत ज्यादा बदलाव लेके आ रहे हैं युवा में, तो 2026 के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं? अपने आप के लिए कि किस चीज के लिए? सबके लिए, बिकॉज आप तो प्रिपेयर्ड है। Yes, but what kind of answer are you looking for? Like what kind of preparation I'm doing for myself or what kind of goals I'm setting? नहीं, आप युवाओं के लिए क्या करें? बिकॉज जिस तरह से आप Yes, so युवाओं के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम अभी करंटली लॉन्च किया है जो 2026 में उससे भी बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे कि आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा हमारे बारे में, हम नॉट जस्ट हमारे बारे में, फॉरगेट हमारे बारे में, आई सेड द रॉन्ग थिंग, बट अपने खुद के फिटनेस जर्नी के बारे में, और आप कैसे बिना हमारा प्रोग्राम लिए या कंसल्ट किए हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े बगैर अपने आप पे कैसे काम कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए, वो चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। सो 2026 इज गोइंग टू बी वेरी बिग ऑन दैट। ग्रेट। वन थिंग विच एवरीवन हु इज वाचिंग यू शुड कंपल्सरीली डू, ये मितेन सर का एक सजेशन है, उनको क्या करना चाहिए? एक छोटा सा बदलाव, चाहे वो मैन विमेन बच्चा जो भी है, वन चेंज टुडे वुड बी प्रायोरिटाइज योर स्लीप। अगर आपके पास टाइम कम है और आप जिम जा रहे हो, मैं कहूंगा कि उस जिम के टाइम को सेव करो और कैच अप ऑन योर स्लीप। ओके, इम्पोर्टेंट, great, very important, one of the most neglected and underrated aspect. correct. And last but not the least, सर का क्या सपना है? What is your dream? My dream is to shift the perspective of Indians from sick care to preventive health care. एंड मैं करंटली उस मिशन में काफी जोर शोर से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इसी वजह से 2026 में हम एक ऐसा बड़ा सा प्रोग्राम ला रहे हैं। ऑलरेडी उसका लॉन्च तो हमने कर चुका है, बट 2026 में उसको और भी ग्रो करने वाले हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आप अपने मेजर लाइफस्टाइल इश्यूज जो होते हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो गया, एनर्जी लेवल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, ये सब चीजों को आप आने से कैसे रोक सकते हो अपने लाइफ के अंदर, और अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी ये चीज आ चुकी है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, एंड अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट उसको कैसे आप रिवर्स भी कर सकते हो। ये चीज के लिए हम वी आर वेटिंग बिग फॉर 2026। ग्रेट। अगर किसी को एनरोल करना है ये प्रोग्राम के लिए, किस तरह से कर सकते हैं? वी डोंट टेक एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। सो अगर आपको एनरोल करना है, आपको पहले तो हमारी टीम से बात करनी पड़ेगी और हमें जानना पड़ेगा कि क्या आप हमारे टीम के लिए करेक्ट फिट हो या नहीं हो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हो
then we need to see if you're the right fit. Whether हम जितनी energies और dedication और effort आपके पीछे डालने वाले हैं, क्या आप उसे reciprocate कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, के लिए ये चीज कितनी important है. Fit तो हर कोई होना चाहता है. Like you said, even you had a goal of getting a six-pack ab, but it's never on a priority. Life में there are 10 different priorities, and maybe fitness or getting a six-pack abs or working on my health is going to be at number 7, number 8 or number 6. But as time goes by, it will change. It will come down to number 2 or number 3 or even number 1. And when it comes over there, that's when we will work with you. Wonderful, wonderful. Well said, well said. I think we had a wonderful session. We think, sir, I think बहुत बहुत मजा आया because we had a lot of takeaway today. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो लिस्ट बनाया था सवालों का उसमें से हमने सिर्फ आधे पूछे बिकॉज आपके साथ बातचीत कर तो इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं एंड वी वांटेड टू डीप डाइव इनटू लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस सो समवेयर अगेन वी कैन कम बैक टू यू but it was a wonderful session. I think, Miten, we had a wonderful time. Once again, big thank you to you, and we had a great value today. Thank you so much, Darshan ji. आपके साथ बात करने में बहुत मजा आया. It has been a pleasure, and special thank you to our viewers as well. You guys have been a lovely audience. Thank you so much for tuning in, standing by, and I hope आपको कुछ सीखने मिला भी हो. And most importantly, जो सीखा है उसको जाके implement करो. जो चीजें हम लोग ने discuss की थी earlier on, like for example, morning sunlight exposure हो गया, morning hydration हो गया, evening wind down routine हो गया, वो चीजों को आप putting into action into your daily life, and you will see that over time it is having a compounded effect in the quality of your life. So hope that you go ahead and implement it as well, because fitness एक ऐसी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते. ये इस टी शर्ट की तरह नहीं है कि मेरे कान में गया, मुझे पसंद आई टी शर्ट, मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया, मैं टी शर्ट घर लेके आया, मैंने पहन ली तो मुझे मजा आ गया. नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आप नहीं खरीद सकते. आपको एक्शन लेना होगा और आपको रिपीटेडली एक्शन लेना होगा, तब जाकर आपके उसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. So whatever we've discussed today, try putting it into action and try staying consistent, and most importantly, continue believing in yourself, because you too can transform yourself no matter what situation you are in. Well said, well said. I think बहुत बहुत शानदार कहा आपने. And anybody who wants further more information, तो मितिन सर को DM कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, and I can connect you guys to मितिन सर. So once again बहुत बहुत शुक्रिया मितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Yo, wonderful day, and we had a great time. Thank you. Thank you. You also have a wonderful day, and see you later.